मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? एनीवन रेज योर हैंड. एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? It's all about It's about satisfaction to needs and wants. satisfaction of the customers, right? Yes, Arpita. अनम्यूट हो जाओ बेटा, अनम्यूट हो. अर्पिता. हाँ. Ma'am, it is all about to satisfy customers Yes. by giving better Product. I guess. So what is the meaning of marketing? में जब पहला ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अब मार्केट है that is customer oriented. Marketing is the process, or we can say it is a set of activities which is basically done by the marketer or company. Why they are doing so? For providing the value to the customers, and if they will get the value, customer अगर उनको value मिलेगा, then they will be satisfied. ठीक है. So basically marketing क्या है? एक set of process है. Product को provide करना कहाँ से? From the producer to till customer, each and every process in between that is a part of the marketing. आई बस समझ में? यानी कि if we are promoting the product, if we are producing the product according to customer demand, if we are basically distributing the product, if we are setting the price, right, each and every concept जहां पर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंच रहा है, मार्केटर पहुंचा रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग. यस, बट मार्केटिंग तो ठीक है, दैट इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज. तो व्हाट इज मार्केट देन? मार्केट क्या है? व्हाट इज मार्केट? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कस्टमर. अपने सामान को एक्सचेंज कर. Very good. So basically market, we can say it is a place where the transactions happen, exchange transactions happen. ठीक है. अब ये यहाँ market जो है that can be the physical place and that can be the online as well, because we are purchasing the product from the online site, right? So physical place अगर हम example लें तो यहाँ पर कौन parties involve होती है market में? Two parties are involved, buyer and seller. ठीक है. And what they are exchanging? Seller is exchanging the product in behalf of money amount, and the customer is paying the amount to purchase the product. Always remember, in product, service and goods both will be included. दोनों को हम include करेंगे हमेशा. ठीक है. तो market जो है that is a, बोल सकते हैं यहाँ नैरो कंसेप्ट है, बट मार्केटिंग इज नॉट द नैरो कॉन्सेप्ट, राइट? यहाँ सारी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं जो कि प्रोडक्ट बनाने से लेकर के प्रोडक्ट पहुंचाने तक कस्टमर को, सारी एक्टिविटीज दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. इट्स नॉट अबाउट द who are making the products only, जो सामान बना रहे हैं, प्रोडक्ट हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, सिर्फ इन कंपनीज की बात नहीं है कि they are only doing the marketing. But each and every company, either that is a software company, either they are the service provider, everyone is doing marketing. For what? For basically increase their sales and for providing the customer satisfaction. ठीक है. आई बात समझ में? यहां तक सबको क्लियर है? जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट. सो मार्केट क्या है? दैट कैन बी द फिजिकल प्लेस जहां पर ट्रांजैक्शन होता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है, किसके किसके बीच में? बायर एंड सेलर के बीच में. अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि व्हाई द कंज्यूमर आर पेइंग मनी फॉर द प्रोडक्ट? क्यों मनी पे करता है उस प्रोडक्ट के लिए? कंज्यूमर जो है वो क्यों पैसे पे करेगा? व्हाई आई एम पेइंग 10 रुपीज फॉर परचेजिंग दिस पेन? मैम क्योंकि ओपन आपको satisfaction. Because of the utility. Because of the utility, it means that we have to utilize it for writing,
दैट्स वाई जिस भी प्रोडक्ट का यूटिलिटी होता है उसका क्या हो जाता है, वैल्यू होता है, एंड वी आर बेसिकली पेइंग द अमाउंट फॉर वैल्यू। आई बात समझ में? नाउ इफ आई विल रिमूव दिस पेन से, ये मैंने कैप निकाल दिया, नाउ यू आर गोइंग टू पे 10 रुपीज फॉर दिस कैप? नो मैम। No, ma'am. Why? Because अब इसकी कोई यूटिलिटी या वैल्यू नहीं है. So in that situation, we are not going to pay 10 rupees for this cap, but we are going to pay 10 rupees for this pen. आई बात समझ में? क्योंकि इसकी यूटिलिटी, इससे हमारा कुछ काम हो सकता है ना? We are going to pay 10,000 rupees for a specs. Why? Because that is useful for our eyes. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट के साथ यूटिलिटी जुड़ जाता है उसका मतलब वो क्या हो जाता है, वैल्यूएबल। ठीक है, एंड फॉर द वैल्यू क्या होता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन द बिटवीन द सेलर एंड द बायर। क्लियर हो गई बात? समझ में आया यहाँ तक सबको, एवरीवन? सो व्हाट इज मार्केट एंड व्हाट इज मार्केटिंग, आई गेस क्लियर हो गया होगा। नाउ हु आर कस्टमर्स, who are customers and who are consumers? See, today is the basic class, मैं basic introduction दे रही हूँ, next class we will start with the all the topics. बताइए मुझे। मैम कस्टमर जो खरीदता है और कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है उस सामान प्रोडक्ट को। Very good. The customers are those person who are purchasing the product, but it doesn't mean कि वो सिर्फ अपने लिए ही प्रोडक्ट खरीद रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कि वो किसी और के लिए प्रोडक्ट परचेज कर रहा हो। हमारे पेरेंट्स, ठीक है, मान लीजिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं परचेज करके, मान लीजिए आपके लिए मोबाइल फोन लेकर आ रहे हैं, बट वो खुद उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, यानी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ही इज नॉट द फाइनल यूजर, सो हु इज गोइंग टू यूज दैट? मे बी उनके फैमिली मेंबर में से कोई। सो द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग और यूजिंग द प्रोडक्ट, that person is consumer, but the person who is purchasing the product, yes, customer can be the consumer. ठीक है, customer can be the consumer. क्लियर हो गई बात? खुद से खरीदेंगे और उसको खुद कंज्यूम करेंगे, that can be the possible thing. क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया? The final user, कस्टमर मैम। हाँ बोलो बेटा। कस्टमर की बात करें तो कस्टमर यूज करता है उसको, हाँ, जो फाइनल यूजर होते हैं, जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दे आर कंज्यूमर। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया? कंज्यूमर, कस्टमर, मार्केटिंग, मार्केट, डन, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग दैट इज गिवन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन है, उसको लिखिए सब बच्चे, लिखिए। फर्स्ट लिखिए, American Marketing Association defines marketing as, American Marketing Association defines marketing as, marketing is an organizational function, AMA, शॉर्टकट में लिखना है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का शॉर्टकट AMA होगा। ठीक है, सो द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस मार्केटिंग एज, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहां ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स यहां से शुरू कीजिए, लिखिए, मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेस, एंड अ सेट ऑफ processes, its processes for, marketing is an organizational function, marketing is an organizational function and a set of processes, and a set of processes for creating, comma, communicating, comma, and delivering value, and delivering value to customers, and for managing customer relationship, for managing customer relationships in ways that benefit relationship, in ways
that benefit the organization and its stakeholders. The organization and its stakeholders, inverted comma closed, full stop. Okay, so what American Marketing Association is saying, marketing जो एसोसिएशन है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है, वो कहता है कि मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है. एंड आई गेस एवरीवन नोज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बाकी फंक्शंस होते हैं, आपके प्लानिंग, आपका कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑल दोस फंक्शंस आर हैपनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. लाइक दैट फंक्शन द मार्केटिंग इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है वो. और इसमें क्या होता है, सेट ऑफ प्रोसेस है. क्रिएटिंग का मतलब क्या है? क्रिएटिंग का मतलब है क्रिएटिंग या फिर क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड एंड नीड. ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट होता है प्रोडक्ट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी आर कम्युनिकेटिंग का मतलब है वो प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं, यानी कि अवेयर कराते हैं कंज्यूमर को अबाउट द प्रोडक्ट, कम्युनिकेट करते हैं उनसे. ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर है आपका प्रमोशन. मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रमोशन, जहां पर हम कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय शोइंग द एडवर्टीजमेंट, बाय यूजिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल टेक्निक. ठीक है, सो कम्युनिकेशन करते हैं और उनको डिलीवर करते हैं वैल्यू. ठीक है, किसको डिलीवर करें? वैल्यू, कस्टमर्स को. और साथ साथ में वी आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द कस्टमर रिलेशनशिप, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कस्टमर सर्विस. हम लोग कस्टमर सर्विस भी देते हैं, और जिससे दोनों का बेनिफिट होता है. किसका बेनिफिट होता है? आपके कस्टमर्स का भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कंपनी हो, उनका मेन एम या बेनिफिट क्या होता है? क्या एम होता है किसी भी कंपनी का? प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना. लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़िएगा तो याद रखिएगा कि अभी का जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि वी हैव टू अर्न द प्रॉफिट बट आफ्टर सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स. कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर ओरिएंटेड अब मार्केट है. आ गई बात समझ में? सो यही सेम चीज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन बोलते हैं. ठीक है, आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो गया होगा. डेफिनेशन, मीनिंग यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, अपने से आप लिख सकते हैं. चलिए, व्हाट आर द वेरियस कोर कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स. कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? यानी कि जो पूरा मार्केट का सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है, किस तरीके से स्टार्टिंग होती है, मार्केटिंग क्यों रिक्वायरमेंट है इसका. तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में. ठीक है, अच्छा, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? देखिए, आपका जो फर्स्ट ईयर है ये, ठीक है, सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर में आपके जो बेसिकली मैं बता दूं, व्हाट आर द 4 P's? एनीवन? क्या क्या है? Yes, ma'am. प्रोडक्ट, Price, प्रमोशन. वेरी गुड, place, प्रमोशन. ठीक है, तो 4 P's जो है वो इलाबोरेटेड फॉर्म में आपको पढ़ना है. ठीक है, मार्केटिंग मिक्स आपको पढ़ना है इन द बुक, इन द 3rd सेमेस्टर बुक. ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा मार्केटिंग, कस्टमर, मार्केट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा. और आगे जो है दैट इज द कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आपका जो मार्केट में किन किन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक मार्केट सर्कल को चलाने के लिए या मार्केटिंग को रन करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहला आता है नीड, वांट्स एंड डिमांड. नीड्स, वांट एंड डिमांड. क्योंकि चूंकि हमारा जो अब मार्केट है दैट इज कस्टमर ओरिएंटेड, तो हमें सबसे पहले क्या एनालाइज करना है कि कस्टमर का डिमांड क्या है. पहले आप लोग को पता होगा कि 90s के टाइम पे क्या सिचुएशन था, कोई भी प्रोडक्ट का ना ऑप्शन ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता था. मतलब 90s में मतलब फिर भी थोड़ा बहुत था, अगर आप 50s के टाइम पे देखो तो बहुत ही रेयर ऑप्शन. और मुझे तो ये भी लगता है कि 90s में भी बहुत सारे प्रोडक्ट का ऑप्शन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं था. ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल एक टूथपेस्ट का भी लें तो टूथपेस्ट में भी उस समय दंत मंजन, याद होगा तुम लोगों को, दंत मंजन, कोलगेट, व्हाइट पाउडर और ये सारी चीजें अवेलेबल थी, है ना. तो व्हाई दीज थिंग्स वर देयर? बिकॉज वो प्रोडक्ट बनता था, कस्टमर्स को जो मार्केट में मिलता था वो परचेज कर लेते थे. लेकिन अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लागू है, तो फर्स्ट द मार्केटर विल ट्राई टू एनालाइज कि कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है.
ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज द नीड, वांट एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. बिफोर मेकिंग इट, फर्स्ट वी नीड टू डू मार्केट रिसर्च अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, तो यहीं से आया है नीड, वांट्स एंड डिमांड, और ये किससे रिलेटेड है? कस्टमर से रिलेटेड है. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को क्लियर हो रहा है बेटा? समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट नहीं है? कोई क्लियर है सबको जो भी चीजें बता रही हूँ? Yes, ma'am. चलिए ठीक है. तो नीड क्या होता है? दैट कैन बी द साइकोलॉजिकल नीड. साइकोलॉजिकल नीड जैसे बेसिक नीड जिसको हम कहते हैं, भूख लग रहा है, हंगर, थर्स्ट, ऑल दीज कम्स अंडर द साइकोलॉजिकल नीड्स. ठीक है, तो नीड इज रिलेटेड विथ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है. ठीक है, जरूरत है, जरूरी है, तो दैट इज नीड. नाउ व्हाट इज वांट? अब वांट क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हंग्री, ठीक है, तो दैट इज माई नीड कि मुझे कुछ खाना है ना. नाउ वांट इज दैट व्हाट ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन द मार्केट, है ना. अब मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं, तो मैंने देखा कि मुझे क्या मन कर रहा है, मतलब आई जस्ट वांट टू ईट समथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली खाना तो है ही, बट जब मैंने मेन्यू देखा तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो फाइनली आई चूज कि हाँ मुझे भी डोसा खाना है, एग्जाम्पल के लिए. सो वांट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. ठीक है, तो उससे रिलेटेड है वांट. ठीक है, नेक्स्ट इज डिमांड. अब जो भी आपका परचेजिंग पावर है या विलिंगनेस है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उस हिसाब से आप डिमांड कीजिएगा. ठीक है, जैसे कि भूख लगना, हंगर, दैट इज अ नीड. क्लियर? नाउ द ऑप्शंस प्रेजेंट फॉर द फूड, दैट इज अ वांट, and I am demanding dosa because I have only 200 rupees in my pocket or I just want to eat dosa. ठीक है, so that is my demand. थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ? लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, समझ में आया कि नीड क्या होता है? नीड क्या है बेटा? कि जो चीज साइकोलॉजिकल नीड है, जो चीज रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो नीड हो गया. वांट क्या है? कि उस नीड को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस प्रेजेंट है मार्केट में. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज डिमांड, कि कौन से प्रोडक्ट को हमने चूज करके उसका डिमांड किया. आई बात समझ में? जरूरत, ठीक है, वांट इज चाहत, एंड लास्ट वन इज डिमांड इज मांग. इन हिंदी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट. ठीक है, चलिए इसी हमेशा याद रखिएगा कि नीड जो है दैट इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ अनमेट नीड. मतलब बोल सकते हैं ना कि भूख लगी है लेकिन लंच नहीं है, खाना नहीं है, तभी तो हम कुछ देखेंगे, ढूंढेंगे, राइट, बाहर, एंड फिर उसके बाद डिमांड भी करेंगे. सो ह्यूमन नीड्स जो है वो क्या होता है कि जब आपको कोई चीज से वंचित रखा जाए, अब भूख लग रहा है, खाना नहीं है, तो दैट इज योर नीड कि खाना खाना है. ठीक है, हाँ, नीड जो है वो साइकोलॉजिकल है नेचर में. ठीक है, और उस नीड की जरूरत क्यों है? फॉर सर्वाइवल. लाइक व्हाई वी वांट टू ईट फूड? बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव, राइट. सो पीपल रिक्वायर्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, esteem, belonging, all these comes under the need. मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा है? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा है ना? सो दैट इज बेसिकली, हाँ, दैट इज बेसिकली स्टेजेस ऑफ नीड, है ना. तो यही जो नीड्स हैं वो क्या करते हैं? दैट क्रिएट अ साइकोलॉजिकल टेंशन इफ वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द नीड. अगर खाना नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना. सो नीड क्रिएट अ साइकोलॉजिकल टेंशन if we are not able to purchase the product या if we are not able to fulfill the need. क्लियर है? तो दैट इज नीड. क्या समझ में आया? दैट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर, और उसमें आपके बेसिक नीड्स भी आ सकते हैं, आपके स्टीम नीड भी आ सकते हैं, सिक्योरिटी नीड्स भी आ सकते हैं, सेफ्टी नीड्स भी आ सकते हैं. सो दीज आर नीड्स. क्लियर हो गया? लिख लिया सबने? कुछ शॉर्टकट में छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट वन. नीड्स आर साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड दैट कैन बी, क्या क्या हो सकता है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, स्टीम, बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड, ये सारे आपके नीड्स में आ जाएंगे. क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट वन इज वांट. अब वांट्स क्या होता है उसमें एक लाइन पहले लिखो. वांट्स क्या होता है? Wants are the option. Wants are the option to satisfy a specific need. Wants are the option. Wants are the option to satisfy a specific need.
to satisfy specific need. To satisfy specific need. Wants are the options to satisfy a specific need. वही चीज मैंने आपको बताया था जैसे कि food can be the need, but what we want to eat, that is the option. ठीक है, हमें क्या खाना है. अब जैसे आपको रात में कोई भूख लगता होगा तो सोचते हो मैगी बना के खा ले, है ना. सो नीड कैन बी द नीड जो है वो फूड हो सकता है, लेकिन फूड में क्या वेराइटी, क्या खाने का मन है, दैट इज अ वांट. क्लियर. नेक्स्ट वन इज, और हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो कस्टमर का तभी होता है जब उसका नीड 100% सेटिस्फाई हो. ठीक है. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के लिए, इफ आई एम हंग्री, वट एवर आई ईट, जो भी हमें मुझे खाना, मैंने खा तो लिया बट स्टिल मुझे भूख लगी है, या फिर मुझे जितना खाना था उतने क्वांटिटी में मैंने नहीं खाया, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या हो जाऊंगी, डिससेटिस्फाइड. ठीक है. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ऑलवेज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन इफ कि आर नीड इज फुल्ली सेटिस्फाइड और नॉट. अगर हमारा नीड पूरी तरह फुल्ली जो है सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे. क्लियर हो गई बात, समझ में आया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यही चीज याद रखिए कि मार्केटर्स नेवर वांट टू इन्फ्लुएंस द नीड. वो नीड पे बेसिकली फोकस नहीं करते, दे बेसिकली फोकसेस ऑन वांट. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक टूथपेस्ट परचेज करना, दैट इज द एफएमसीजी गुड, राइट. एफएमसीजी गुड है. तो अब ऐसे सिचुएशन में टूथपेस्ट का ऑप्शंस आपके पास, टूथपेस्ट में आप गए आसपास अपने स्टोर पे परचेज कर लिया एक आपने, ठीक है, तो वो तो आपकी नीड को फुलफिल कर देगा कि हाँ मुझे ब्रश करना है तो भाई वो टूथपेस्ट ले लिया. तो मार्केटर आर नॉट फोकसेस ऑन नीड, बल्कि वो किस पे फोकस करते हैं, आपके वांट पे, कि आपके पास जब ऑप्शन है तो आप किसको चूज कीजिएगा. आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हुआ. क्लियर. आई एम यूजिंग द, जो आपका नॉर्मल लाइफ में जो चीजें, उन सब चीजों को मैं यूज कर रही हूँ. क्लियर, समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल जो भी मैं ले रही हूँ. Yes, ma'am. ठीक है. चलिए, अब व्हाट इज डिमांड. लिखिए, डिमांड इज द वांट, डिमांड इज द वांट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, डिमांड इज द वांट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दैट आर backed by the ability. Demand is the want for specific products that are backed by the ability and willingness. विलिंग का मतलब क्या होता है, जब हम खुद से कोई चीज खरीदना चाहते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप एक, सो willingness to buy them, demand is the want for the specific products that are backed by the ability and willingness to buy them. यानी यहाँ पर मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि हंगर, दैट इज अ नीड, फूड चाहिए. ठीक है. ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस, क्यूजीन आर अवेलेबल. ठीक है. दैट इज वांट्स. नाउ आई हैव ओनली 100 rupees, so my demand is according to my purchasing power. So according to my purchasing power I will choose among the menu. So basically डिमांड एक ऐसा वांट है जहां पर हम खुद से जो चीज विलिंग करते हैं और हमारा जो परचेजिंग पावर हमें अलाउ करता है, हम उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं. अब एग्जाम्पल में आपको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए कॉलेज तक आने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक बोल सकते हैं कि घर से आपको प्रॉपरली ऑटो या कन्वीनियंस नहीं मिल रहा है, तो दैट इज योर प्रॉब्लम. समहाउ नीड जनरेट होगा कि मुझे कुछ 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स ऐसा कुछ चाहिए, है ना. सो दैट इज द नीड. क्लियर है. बट व्हाट ऑप्शंस आर प्रेजेंट, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर 2 व्हीलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट. दैट इज अ वांट कि उसमें से आप क्या चूज कीजिएगा, लेकिन आपके पास बजट है मान लीजिए 50 या 80,000 का, तो अब 80,000 के हिसाब से ही आप उन प्रोडक्ट में चूज कीजिएगा. सो कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर लीड टू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. ठीक है ना. अब मान लीजिए 2 व्हीलर है, वांट में तो हम चाहेंगे कि भाई अब रॉयल इनफील्ड ही खरीद लेते हैं,
है ना, लेकिन चूंकि उसका अमाउंट दैट इज द बोल सकते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव बाइक, सो इन दैट सिचुएशन आवर पॉकेट इज अलाउइंग अस कि हम बस यही वाला प्रोडक्ट भाई भाई ये हीरो होंडा का ही कुछ होंडा का ही ले लेते हैं मान लीजिए। आई बात समझ में, दैट इज डिमांड। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वन इज products. Next one is product. Need, wants and demand clear हो गया, that is related with customer. Now product. अच्छा, what is product? That is a bundle of utility and satisfaction. यूटिलिटी वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि why we are basically giving money for the product, because that product have utility, उसका कुछ utilization है. Why we are paying 10 rupees for mask? Because that is going to protect me. Clear? So because if the product have some utility, then that is going to give us satisfaction. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है? एक बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, और ये आपके फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी द आपका साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। यानी इन शॉर्ट आप ये समझिए कि आपके गुड्स भी हो सकते हैं और आपके सर्विसेज भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस पता है क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस, what is goods and what is service? Because you all are the marketing student, so that is the important thing कि सबको पता होना चाहिए। See, goods are something which is tangible, which is visible, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, है ना, so that is tangible. But if you are talking about service, that is intangible, जिसको हम देख नहीं सकते, but we can experience that. उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, you cannot able to see the teaching जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो तो आप नहीं देख पा रहे हो ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ, no, लेकिन if I will give you this book, you can see that कि this is a book. So book is a tangible thing, but the teaching is the intangible thing. अगर कोई हॉस्पिटल में जाते हो मेडिकल कंसल्टेशन के लिए, so the doctor who is telling you about your reports, that is the intangible thing, that's why that is a service. But if they are giving you product, it means drugs or medicines, जिसको हम कहते हैं, drugs का मतलब मेडिसिन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? टैंजिबल प्रोडक्ट। आगे बात समझ में? सो गुड्स एंड सर्विस में क्या डिफरेंस है? यहाँ बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि गुड्स जो होते हैं दैट कैन बी स्टोर्ड, उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टोर दिस बुक, बट वी कैन नॉट स्टोर द बेसिकली टीचिंग, हम जो पढ़ा रही हूँ उसको स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, एक और रही हूँ एट द टाइम, वो एक कस्टमर और एक बोल सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बिहाफ में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, राइट? तो साइमल्टेनियसली आपका प्रोडक्ट जो है, ये सर्विस जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो कंज्यूम होता है साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है। बट गुड्स के साथ ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। गुड्स कैन बी स्टोर्ड, इसको हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, 6 महीने बाद भी इसको दे सकते हैं, 1 साल बाद भी दे सकते हैं, बट सेम थिंग इज नॉट विद द सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज कि सर्विस की सिचुएशन में आप सर्विस प्रोवाइडर से उसके नॉलेज को ग्रैब नहीं कर सकते। हाँ बेटा बोलो। नेक्स्ट क्या है कि हाँ, गुड्स जो होता है उसका पोजेशन यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, अगर सेलर ने मुझे ये पेन दिया, मैंने इसके लिए 10 रुपीज पे किया, तो इसका जो ओनरशिप है वो मेरे पास ट्रांसफर हो गया। बट इन द केस ऑफ सर्विस, द ओनरशिप ऑफ द सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर। यानी अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर यानी कि कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो आपको समझा सकता है, प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, लेकिन अपना नॉलेज आपको नहीं दे देगा, उसका आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द केस ऑफ सर्विस, बट इन द केस ऑफ गुड्स द ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर इफ वी आर पेइंग द अमाउंट फॉर दैट। क्लियर? समझ में आया? तो हम गुड्स एंड सर्विस पे थे, यहां तक क्लियर हो गया। गुड्स एंड सर्विस का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस सबको पता लग गया?
गुड्स एंड सर्विस का क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, सो प्रोडक्ट जो है वो क्या है आपका, दैट कैन बी द बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट हैव सम वैल्यू एंड यूटिलिटी, ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या 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 चीजें एक कंपनी देखता है, प्रोडक्ट में वो क्या क्या चीजें पुट करता है, प्रोडक्ट का कलर कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट किस टाइप से डिजाइन होना चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करें, प्रोडक्ट में लेबलिंग कैसे करें, ठीक है। प्रोडक्ट में आफ्टर सेल्स वारंटी गारंटी कैसे दे, आफ्टर सेल सर्विसेज होता है ना, वारंटीज गारंटीज कैसे दे, ठीक है। इसमें फ्री रिपेयरिंग वगैरह भी आता है आपका, सब ये सब इंटेंजिबल सर्विसेज हैं जो प्रोडक्ट के साथ मिलता है, जैसे वॉशिंग मशीन के साथ 2 साल का वारंटी of the customer. On what we are going to focus is, we are going to focus on the product, about the physical features which we need to add on with that product. Product में आपका goods भी आ सकता है और service भी आ सकता है। जैसे अगर कोई product है तो product को जब हम उसमें बनाते हैं तो उसका color क्या रखें, packaging क्या रखें, color क्या रखें, उसका packaging क्या करें, ठीक है। उसके अलावा उसमें हम एड ऑन सर्विसेज क्या दें, उसमें हम लेबलिंग कैसे करें। सो ऑल दीज डिसीजंस आर कम्स अंडर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम किस तरीके से वैल्यूएबल बनाएं, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वॉशिंग मशीन का, कि वॉशिंग मशीन का क्या कलर रखना है, उसका लेबलिंग कैसे करना है, उसमें एडिशनल फीचर्स कैसे ऐड ऑन करना है। जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि हर एक प्रोडक्ट का, खासकर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का फीचर्स इनहांस ही हो रहा है डे बाय डे, टेक्नोलॉजी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हर एक प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, बेसिकली टेक्नोलॉजी और उसके सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं। अर्लियर पहले कैसा आता था, वॉशिंग मशीन आपका ऑटोमेटिक था ही नहीं, फिर बाद में आया बिल्कुल सेमी ऑटोमेटिक, और अभी तो आपका ऑटोमेटिक चल रहा है। सो उसके कलर कैसे रखे, फीचर क्या रखे, आफ्टर सेल सर्विस यानी वारंटीज गारंटीज कैसे ऐड ऑन करें, तो यानी कि प्रोडक्ट को वैल्यूएबल कैसे बनाएं, ठीक है। कलर भी बहुत मैटर करता है, कलर इज समथिंग थ्रू विच वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्रोडक्ट, है ना। सो प्रोडक्ट्स में ये सारे डिसीजन पे हम ध्यान देंगे। प्रोडक्ट इंक्लूड करता है कोर प्रोडक्ट को, बेसिक कंटेंट, प्रोडक्ट के फीचर्स को ऐड ऑन करता है, जैसे कि कलर, वेराइटीज, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज को ऐड ऑन करता है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजों से एक प्रोडक्ट वैल्यूएबल और बेनिफिशियल बन जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड आपका कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट क्या होगा, प्रोडक्ट। क्लियर? फर्स्ट वन इज नीड, डिमांड, नीड, वांट्स एंड डिमांड। सेकंड वन इज प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी। यूटिलिटी बहुत जगह पे प्रोडक्ट के साथ ही यूटिलिटी ले लिया जाता है। यूटिलिटी ऐसे इट इज रिलेटेड विद प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। जब आप बुक में देखिएगा तो इस यूट बात नहीं। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड टाइप जो है दैट इज यूटिलिटी या वैल्यू, कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी, वैल्यू, कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अच्छा, यूटिलिटी इज रिलेटेड विद द कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड विद द कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कैपेसिटी मतलब समझ रहे हो कि वो प्रोडक्ट क्या काम कर सकता है, ठीक है। सो यूटिलिटी मींस ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। जैसे ये पेन था, आई पेड 10 रुपीज फॉर दिस पेन, ठीक है। सो आई पेड कॉस्ट, क्लियर, बिकॉज दिस प्रोडक्ट हैव यूटिलिटी। But when I started writing with this pen, it was not working properly. So it means according to the capacity, जितना मैंने पैसा पे किया और इसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए, it's not working like that. So in that situation, customer will be satisfied or dissatisfied? Dissatisfied. तो same thing is with this, कि जो आपका utility है वो overall capacity है जो आपके customer के need को satisfy करता है, ठीक है। अब यूटिलिटी कैसे आप डिटरमाइन करते हो, किसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी कैसे डिटरमाइन होता है? यूटिलिटी का मतलब था यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन से है, यूटिलिटी से यूटिलाइजेशन। यूटिलिटी इज डिपेंड, वेरी गुड, यूटिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस और द अमाउंट वी आर पेइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, एकदम ध्यान से हर एक पॉइंट को सुनना। यूटिलिटी इसका डिटरमाइन हुआ है 10 रुपए जो मैंने इसका दिया है ना, 10 रुपीज आई पेड। सो फॉर अकॉर्डिंग टू दैट आई एम बेसिकली
एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पेन अकॉर्डिंग टू 10 रुपीज कि मैंने 10 रुपया दिया है तो एटलीस्ट उस हिसाब से चलना चाहिए. इफ आई पेड 2 रुपीज फॉर अ पेन, आई विल बी लाइक कि हाँ मैंने इसके लिए 2 रुपया दिया है तो इसकी यूटिलिटी भी उस हिसाब से होगी. इट विल वर्क लाइक दैट ओनली. आई बात समझ में? सो यूटिलिटी जो कंज्यूमर का है, यूटिलिटी जो है प्रोडक्ट का, वो कंज्यूमर को बेसिकली फाइनली सेटिस्फाई करता है. एंड द अमाउंट विच वी आर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट, दैट विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. यानी वैल्यू बोल सकते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी डिटरमाइन करता है. जैसे अगर वॉशिंग मशीन अगर हमने 10,000 का खरीदा तो वी विल थिंक अबाउट दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू 10,000. बट इफ वी आर पेइंग 50,000 फॉर अ वॉशिंग मशीन, वी वांट कि इसका यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, वैल्यू ज्यादा बेटर हो और परफॉर्मेंस भी प्रोडक्ट का बेटर हो, है ना. कॉस्ट का मतलब वही, कॉस्ट मींस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. इकोनॉमिक वैल्यू क्या है प्रोडक्ट का, दैट इज कॉस्ट. एंड ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू, कॉस्ट जितना हमने पे किया, वैल्यू, यूटिलिटी एंड कॉस्ट जितना हमने पे किया, दैट इज फाइनली लीड टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. And through which we are expecting the utility, for which we are paying the cost, that is product. Clear हुआ सबको? Everyone? Online class? Online class? समझ में आया बेटा? Clear हुआ? नो मैम, यूटिलिटी एक बार फिर से समझा दीजिए. यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा जिसका कोई यूटिलाइजेशन हो, जिसका कोई वैल्यू हो, जिसका परफॉर्मेंस हो. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के लिए पेन है, इसका यूटिलिटी क्या है, लिखने का काम है, लिखना है ना, तो ये इस पेन का यूटिलिटी हुआ. राइटिंग इज इट्स यूटिलिटी. ठीक है. लेकिन अगर इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर. फॉर राइटिंग आई एम परचेजिंग दिस पेन, सो राइटिंग के लिए मुझे इस पेन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज यूटिलिटी. ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन है. But if it will work properly, then I will be satisfied as a customer. But if it will not work properly, I will not satisfy. So utility is related with the value, the value and the क्या है ये, performance. ठीक है, perform कैसे कर रहा है प्रोडक्ट. आई बस समझ में बेटा? क्लियर हुआ? यस मैम. एंड इस पेन के लिए जो मैं पैसा पे कर रही हूँ, दैट इज कॉस्ट. दैट इज कॉस्ट. एंड जो पेन को डिजाइन किया गया है, ये सारे डिसीजन किस में लिए गए, प्रोडक्ट में. ठीक है. प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, डिजाइन कैसे करें, इसका कलर कैसे डालें, आफ्टर सेल सर्विस क्या दे, ये सारा कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन है. और प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है, दैट यूटिलिटी एंड द कॉस्ट, दैट इज गोइंग टू फाइनली सेटिस्फाई द कस्टमर इफ परफॉर्मेंस इज ओके. समझ में आई बात? तो इकोनॉमिक cost या economic amount या the amount or the price which the consumer is paying for the product, that is cost. And for what we are paying the cost, for the product, for the goods, and the utility, that how it will perform. Clear? And for what we are purchasing this, I am purchasing is it for writing. And if it will write, if I'll write and I'll feel कि बहुत smoothly चल रहा है, it means its performance is best, and it means that I am satisfied. क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया? ठीक है. यस मैम. सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड, नीड, फुलफिलमेंट ऑफ नीड. हाँ बोलो. इकोनॉमी का मतलब है इसका जो अमाउंट है, जितना इसका वैल्यू, उस हिसाब से ना पैसा पे करेंगे. 10 रुपए ही पे करेंगे ना इसका. पार्कर का 200 पे कर देंगे, लेकिन इसका कितना पे करेंगे, 10 रुपए. So that is the cost, the price, the amount. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप. एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप, these are the basically major concepts in marketing. ये सारे चीजें कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केटिंग के लिए यूजफुल है. नीड, वांट, डिमांड किसका, कस्टमर का. प्रोडक्ट कैसा बनाना है, मार्केटिंग, मार्केटर सोचेगा. नेक्स्ट, किस तरीके से यूटिलिटी इसका इंक्रीज करे, कितना प्राइस रखें इस प्रोडक्ट का, that comes under the utility, cost and satisfaction. Then the fourth point जो आपका next जो है, that is exchange, transactions and relationship. What is the exchange? एक्सचेंज क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. What is exchange?
मनी के बदले कुछ। अच्छा, एक्सचेंज के लिए कंडीशंस कौन कौन से लगेंगे? पहली बात तो कभी भी कोई चीज एक्सचेंज हो रहा है तो वहां पर दो पार्टीज का होना जरूरी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज? जब हम कोई अदला बदली करते हैं, हिंदी में सुना है ना अदला बदली। सो अर्लियर मार्केट में क्या होता था, पहले के टाइम पे द पीपल जो थे वो बार्टर सिस्टम के हिसाब से चलते थे। याद होगा आप लोगों को कि गुड्स के बदले गुड्स, है ना? पहले होता था ना Yes, ma'am. गुड्स के बदले गुड्स। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है कि गुड्स के लिए मनी देना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, है ना? सो एक्सचेंज है क्या? सो एक्सचेंज इज अ प्रोसेस विच इज डन बिटवीन द टू पार्टीज एंड टू पार्टीज जो जिनका कंसेंट है। कंसेंट क्या है? रजामंदी है कि भाई मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए के लिए आप मुझे पेन दीजिए, ठीक है? इट इज अ कंसेंट बिटवीन द टू पार्टीज। तो एक्सचेंज जब होगा तभी तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट फाइनली चलेगा। फाइनली में प्रोडक्ट किसको सेल करना है? कंज्यूमर को सेल करना है। तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट जब हम सेल करेंगे और कंज्यूमर से जब हम पैसा लेंगे तभी तो आपका मार्केटिंग वही उसी के थ्रू तो चल रहा है, कस्टमर्स के थ्रू, है ना? सो यहाँ पर कौन कौन होने चाहिए मार्केट एक्सचेंज प्रोसेस में? आपके दो पार्टीज होने चाहिए। कितने पार्टीज होने चाहिए? 2 पार्टीज होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम 2 पार्टीज रिक्वायर्ड है। उसके अलावा एक पार्टी के पास कुछ समथिंग वैल्यूएबल होना चाहिए और दूसरी पार्टी के पास भी कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए। यानी एक पार्टी के पास ये पेन है और एक पार्टी के पास 10 रुपए हैं, तो दोनों के पास क्या है? वैल्यू है। और यहाँ पर एक्सचेंज किस चीज का होता है? प्रोडक्ट और मनी वैल्यू एक्सचेंज होता है। वैल्यू एक्सचेंज होता है, पैसे की भी वैल्यू है, प्रोडक्ट की भी वैल्यू। ट्रू? So each party has something might be of value to the other party. यानी दोनों के पास ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो दूसरे पार्टी के लिए वैल्यूएबल भी है और आपके पास भी वैल्यूएबल चीज है। जैसे कि मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सेलर के लिए। और पेन जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कस्टमर के लिए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन इज each party is capable of communication and delivery. Each party is basically capable of communication and delivery. यानी जो दोनों पार्टी है वो एक दूसरे से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब यही है, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है? ये कैपेबिलिटी दोनों पार्टी में होनी चाहिए। साथ साथ में दोनों पार्टी एक दूसरे को वैल्यूएबल जो भी उनके पास चीज है उसको वो डिलीवर कर सके। यानी कि मान लो मेरे पास पैसे नहीं है और मैं गई पेन लेने, तो मेरे पास तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो मुझे पेन देगा क्या वो सेलर? नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टी में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाए, साथ साथ में दोनों पार्टी एक दूसरे को वैल्यू ट्रांसफर या डिलीवर भी कर पाए। यानी कि अगर वो मुझे पेन दे रहा है तो मैं उसके लिए उसको पैसे भी दूं। क्लियर हो गया बात? समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर एक्सचेंज हो रहा है तो एक तो कम्युनिकेशन डिलीवरी होना चाहिए, दोनों के पास वैल्यूएबल आइटम होना चाहिए, दो पार्टीज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना? दोनों के पास वैल्यूएबल चीजें होनी चाहिए ताकि वो वैल्यू को एक्सचेंज कर पाए, ठीक है? यानी अगर मेरे पास ये पेन है 50 रुपए का और दूसरे पार्टी के पास 20 रुपीज है, तो ऑब्वियसली 50 रुपीज का पेन उसके पास 20 रुपीज है, तो दो वैल्यू इज नॉट इक्वल, ठीक है? ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा? ईच पार्टी इज फ्री टू रिजेक्ट द एक्सचेंज ऑफर। यानी दोनों पार्टी के पास राइट है कि वो एक्सचेंज ऑफर को रिजेक्ट कर सके। यानी कस्टमर के पास भी राइट है कि वो पेन लेने गया हो लेकिन ना ले, रिजेक्ट कर दे, नहीं देखने के बाद भी ना ले। दैट इज द बोल सकते हैं ना, फ्रीनेस है आपको ये। और बिल्कुल आप फ्री हैं, आप कि आप चाहें तो एक्सेप्ट कीजिए उस प्रोडक्ट को, अदरवाइज आप एक्सेप्ट मत कीजिए, ठीक है? ठीक है, दोनों पार्टीज के पास राइट है। हो सकता है वो सेल ना करे और हो सकता है वो परचेज ना करे, तो बोथ पार्टी हैव राइट टू रिजेक्ट the offers. Clear? So this is exchange. क्या बोल रहे हो? क्या less required? बिल्कुल, place या place that can be the online and that can be the offline. Clear है ना? जैसे कि कई बार रिजेक्शन आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन लेते हो तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपके पास मैसेज आ जाएगा कि यू कैन नॉट गिव द ऑर्डर ऑफ दिस प्रोडक्ट, मतलब आप मत दीजिए इस ऑर्डर इस प्रोडक्ट का, ठीक है? दूसरे कलर्स ऑप्शंस का आपको दिखाते हैं वो ऑप्शन कि आप इनमें से चूज कीजिए, है ना? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इवन। क्लियर है? और आप ऑनलाइन में तो ये चीजें होती हैं, साथ साथ में अगर आप ऑफलाइन जाते हो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो कई बार बहुत सारे स्टोर में जाने के बाद पसंद नहीं आता तो प्रोडक्ट नहीं लेते। यहाँ तो क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? In the next class, we'll start with the transaction.